بادشاہ اس ٹائم میں کھلوتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 5657 DB۔ سارے بہت ہی قریبی دوست ہیں ڈاکٹر الطاف چھونج، وہ فوت ہو آج ہماری اس تقریب کا مقصد جماعت دہم کے طلباء کو وہ معمارکم و رہبر راہ وفا تم ہو، ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نقلے فلک سے اٹھ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ السلام علیکم، کی حال ہے بادشاہ اس ٹائم میں کھلوتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 5657 DB۔ تے اج تانوں حال احوال چیک کروانا ہے ساڈے اتنے ہائی سکول دی جڑی 10ویں کلاس ہے انہاں دی اج فیئرویل پارٹی ہے، الوداعی انہاں دا ایک چھوٹا جا فنکشن ہے۔ اس تقریب نو مختصر کرن دی وجہ یہ ہے کہ ساڈے بہت ہی قریبی دوست ہیں ڈاکٹر الطاف چھونج، وہ فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت وچ جگہ دے، انہاں دی اج کولخانی بھی ہے۔ سب تو پہلا ہری بھری گرینری تے رنگ برنگے پھلاں دے وچ جناب بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سٹیج۔ بچے جناب ہتھاں دے وچ پھل لے کے کھڑے نے، اپنے ٹیچرز یہ صرف ایک ویلکم نہیں سی بلکہ محبت، عزت تے شکریہ دا ایک اظہار بھی سی۔ آج دا دن صرف ایک فنکشن نہیں بلکہ یاداں دا حسین خزانہ بن گیا ہے جو ہمیشہ دلاں وچ زندہ رہے گا۔ اے 10ویں کلاس دے سٹوڈنٹ نے جڑے ہن تشریف لے کے آ رہے نے تے اس تقریب دا آغاز ان قریب سر جڑے نے سیف الرحمان صاحب کرن والے نے، تے آج دا اے جڑا یادگار فنکشن ہے یہ انہاں بچیاں واسطے تے ٹیچرز واسطے بھی ایک یادگار ہے۔ فیئرویل دا مطلب صرف الوداع نہیں ہوندا، ایک نویں سفر دی شروعات بھی ہوندی ہے۔ آج ہماری اس تقریب کا مقصد جماعت دہم کے طلباء کو الوداع کرنا ہے کہ انہوں نے یہاں مدرسہ حاضہ میں ایک طویل عرصہ 10 سال کا عرصہ کم و بیش یہاں انہوں نے گزارا اور بڑے اچھے انداز سے گزارا۔ دعا ہے کہ رب کریم ان کو اپنے اساتذہ اور والدین کا ہمیشہ مؤدب بننے کا، رہنے کا کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ تقریب، یہ موقع خوشی کا موقع بھی ہے کہ یہاں جماعت دہم کے طلباء جو انہوں نے اپنی منزل مقصود جو ترقی کرنی ہے آگے سے کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے لیے، میں دعوت دیتا ہوں جماعت دہم کے طالب علم عبداللہ ناصر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن نہیں کی اس مقالہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے گویا کہ میں نے اپنے مقالہ کی، اپنے کتاب کی تعریف کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ و برتر تو قصہ مختصر، تو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، نعت کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت دہم کے طالب علم نزاکت علی کو۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب آخری وقت آئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، آپ یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جب ہمارا وقت آئے ہماری زبان پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔
आज जिस मौजू की महक से गवर्नमेंट के सदारे को मैं मतर करना चाहता हूँ वो मौजू दिन से ज़्यादा रोशन, सूरज से बढ़कर नुमायाँ और अलविदा करने वाले पैकरों के यहाँ बहुत मरूफ है। इसीलिए कहता तो शायद भी कुछ यूँ है कि यार तो यार के अगयार को भी सीने से लगाया हमने, यार तो यार के अगयार को भी सीने से लगाया हमने। तुम हमको दिल जिगर से स्टेज की जीनत बनाया तुमने। मकसूद थी अलविदा जब इस गवर्नमेंट के अदारे से, तब भी अपने दोस्तों को सीने से लगाया हमने। आज 10 सालाना रफ़ाक़त इख्तिताम पजीर है। आज हम आप जैसे सच्चे, हमदर्द, बातमाद, बाज़मीर, बाइखलाक और दिल अजीज दोस्तों से अलविदा होते हुए नजर आते हैं। इसका नाम रोशन करेंगे जब स्टूडेंट नज़्म ज़ब्त को शार बनाकर नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में इनके नगमे, गलों की शदाबी जैसे इनका तरन्नम, चांद की किरणों जैसे इनका हुस्न, कौसार की हैबत जैसे इनका जल्लाल, चीते की जिगर जैसे इनकी शजाअत, शफा की सुर्खी जैसे इनका लहू, हवा के फराटो जैसे इनके यलगार, फजा के सनाटो जैसे इनका सकूत, दरिया की तुगयानी जैसे इनकी जुलानी और समुद्रों की लहरी जैसी इनकी जुलानी नजर आती है। आखिर में मैं इन अलकाबात से आपसे ज्यादा चाहूँगा, ये दोस्त ना होते तो वेलकम का तबस्सुम ना होता, ये दोस्त ना होते तो वेलकम का ये तबस्सुम ना होता, ये अलविदा करने वाले ना होते तो अलविदाई का तरन्नम ना होता। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अपने का रुमाल। जयवाला, आज इस जगह पर खड़े होकर मुझे वो पहला दिन याद आ रहा है जब मैं डरता डरता इस स्कूल में आया था, और आज एक बदली हुई शख्सियत बनकर जा रहा हूँ। यहाँ पर एक मैं शेर कहना चाहूँगा, बिछड़कर एक दूसरे से ये बस्ती छोड़ जाएंगे, बिछड़कर एक दूसरे से ये बस्ती छोड़ जाएंगे, मगर हम यादों की कुछ यहाँ निशानियाँ छोड़ जाएंगे। जनाबे वाला, हमारे सादा कराम ने हमें सिर्फ किताबी इल्म नहीं दिया बल्कि हमें एक इंसान बनाया है। जब हम गिरने लगे तो इन्होंने हमें सहारा दिया, जब हम थक गए तो इन्होंने हमारा जब जनाबे वाला आज आपकी वो सज़ा और डांट सच पूछे तो उस वक़्त बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब समझ आ रहा है वो सज़ा भी हमें ज़िंदगी के थप्पड़ों से बचाने के लिए थी। वो मामारे कौम वो रहबरे राहे वफ़ा तुम हो, वो मामारे कौम वो रहबरे राहे वफ़ा तुम हो, अंधेरों में जो जलती है वो शम्माए ज़िया तुम हो। मोहतरम असातिज़ा किराम, वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने हमारी कच्ची मिट्टी को एक सूरत बख्शी। आपने हमें सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के फार्मूले और तारीख़ के सनी याद नहीं करवाए, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि टूट कर कैसे खड़े होना है। जनाबे वाला, मैं अपनी क्लास की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ अगर हमारी कभी शरारतों की वजह से आपका दिल दुखा हो, लेकिन यकीन जानिए आपकी दी हुई रोशनी हमारे मुस्तकबिल के अंधेरों में चिराग बनकर चलेगी। जनाबे वाला, मुझे याद है असेंबली की वो लंबी कतारें, वो तपती धूप में पीटी करना, फिर क्लास में जाकर पंखे के नीचे बैठने की तगदो, वो पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल घूमना, पीरियड से बचने के लिए वो टेस्ट के दौरान एक दूसरों को इशारों की ज़बान में जवाब बताना, यारों टेस्ट के दिन ये बीमार होने के बहाने, ये सब बहुत याद आएंगे। आप सिर्फ सीनियर नहीं थे बल्कि आप रहनुमा थे, आप मुहाफिज थे और आप एक अच्छे दोस्त थे। अब मैं अपनी 9th क्लास के अपने हम जमातों से भी मुखातिब हूँ कि आज मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का दर्स दे रहा हूँ। अगला साल हमारा है। अब ये स्कूल की चौखट, ये दीवारें और ये बेंचेस अब हमारी जिम्मेदारी है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने इजहार ख्याल भी करें, इजहार तशक्कुर भी करें और आमदीदान कलिमात भी करें। होना जो साथी तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में हो, तुम भी ना हो। आज 3 बातें मैंने आपसे कहनी। पहली बात का आगाज़ मेरी उम्मत के एक शेर से मैंने किया है, जिसमें वो इंसान को अपनी ज़ात की, इसका मफ़हूम है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। मैं अगर मुख्तसर बात करूं तो वो यही कहते हैं कि हमें जो अपनी खूबियाँ हैं वो दूसरे में देखनी चाहिए और जो दूसरों की खामियाँ वो अपने में देखनी चाहिए। हमारे यहाँ बात ज़रा इसके मुतज़ाद है, दूसरों की हम खामियों देखते हैं और अपनी हमें खूबियाँ नजर आती हैं। तो यकीनन जब इंसान अपनी खामियों को ढूंढता है तो न सिर्फ इस्लाह होती है बल्कि उसके अंदर हया पैदा। और बात, अहमद बड़ा बिखर किस्म का चाइल्ड था, शरारती भी था, तो
एक दफ़ा वो ना मुर्गियों के दरबे में चला गया, अंडों पे बैठ गया। कहता है मैं इसलिए बैठा हूँ कि मुर्गी जब बैठती है अंडे पे तो चूजे निकलते हैं, जब थॉमस बैठेगा तो क्या होगा। तो जानने की ख्वाहिश तो थी ना, बेसिकली तो सैदान जो था इतना लायक नहीं था। और ठीक है अपनी इस्लाह करना, और दूसरी बात मैंने ये कि खुद पे आप चीज़ों को मुस्बत लेना, और तीसरी बात है खुद पे यकीन रखना, खुद पे। बाकी आपके दिन बड़े थोड़े हैं, 10th वाले जा रहे हैं, तो आप लोगों को बस ये मैं यही कहूँगा कि आप तन मन धन लगा दें। जैसे इत्तिकाब में बंदा बैठता है ना कि एजुकेशन स्टडी बस एंड स्टडी, पढ़ें बस सिर्फ पढ़ें नहीं ठहरा। फ़ज़ाए दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। किसी शायर ने कहा था कि ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में जब आते हैं तो बिछड़ने का गम भी होता है, लेकिन साथ एक मंजिल और एक दर्जा जो तरक्की करता है उसकी खुशी भी होती है। तो ये महफिलें जो होती हैं खुशी और गम का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है, खूबसूरत इम्तजाज होते हैं। यकीनन ये काबिल तस्लीम कदम है। बाकी मैं जुमला साहब से भी शुक्रगुजार हूँ वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, और अजीज़ तलबा आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। वो ये सामंजस्य का शेर था कि पहले उससे पहले के और एक और से फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, कभी कभी फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, कभी कभी बड़ी रौनक होती है कि यादें हम कभी मेरी याद आया कि चांद तारों की नरम दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना, अगर वो नकले फलक से उठकर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का, अगर ना गिरे तो मगर ये मुमकिन किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवार जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए, अगर कभी मेरी जात है चांद इशारों की नरम दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख। उसके साथ अल्लाह हाफिज़। अब वसीम अख्तर साहब दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का जो पेपर टाइमिंग है 9 बजे की है, ठीक है, सबको पता है ना, डेट शीट पे भी लिखा होगा, आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होगा, ठीक है। तो 9 बजे वाले कोशिश करनी है, जैसे पहले आपको बताते हैं कि 1 घंटा आपने पहले पहुँचना, ठीक है, और वहाँ पे हमने सवाल ला तैयार बंदे को पहुँचा है या नहीं पहुँचा, ठीक है। और ओके व्यूवर्स, दुआवां च याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।